رکھنا، جس کے بس میں ہے قیامت کو بھی ٹالے رکھنا۔ آئیے حضرات، آخر میں ایک گیت کے چند بند میں حاضر کر رہا ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے، کامل حکم حاضر کر رہا ہوں، ایک گیت کا جی حاضر کر رہا ہوں۔ اے جان غزل، جان غزل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل، جان غزل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل، جان غزل لوٹ کے آ جا۔ یہ پوری نظم، پورا گیت شیوپال جی کی نظم کر رہا ہوں میں۔ اے جان غزل، جان غزل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل، جان غزل۔ بند حاضر کر رہا ہوں۔ رس میں رہے الفت کے اصولوں کی قسم ہے، تجھ کو میرے جذبات کے پھولوں کی قسم ہے، رس میں رہے الفت کے اصولوں کی قسم ہے، تجھ کو میرے جذبات کے پھولوں کی قسم ہے، اب دیکھ ارادہ نہ بدل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل، جان غزل۔ یہ بند بھی دیکھا جا، برسات تیرا نام و نسب پوچھ رہی ہے، اور تیرے نانے کا سبب پوچھ رہی ہے، برسات تیرا نام و نسب پوچھ رہی ہے، اور تیرے نانے کا سبب پوچھ رہی ہے، اے الجھے سوالات کے حل لوٹ کے آ جا، اے الجھے سوالات کے حل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل، جان غزل۔ آخری بند پیش کر رہا ہوں گیت کا، آخری بند حاضر خدمت ہے آپ تمام لوگوں کی نظر۔ اے جان غزل، جان غزل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل، جان غزل۔ بند دیکھیں، شبنم کی ہر ایک بوند میں پنہا ہے شرارے، آخر کوئی کب تک جیے یادوں کے سہارے، شبنم کی ہر ایک بوند میں پنہا ہے شرارے، آخر کوئی کب تک جیے یادوں کے سہارے، جل جائے نہ اس دل کا کنول لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل، جان غزل۔ مقطع حاضر خدمت ہے کہ نایاب کی خواہش ہے یہ فریاد نہیں ہے، اب تیرے سوا کوئی سبق یاد نہیں ہے، نایاب کی خواہش ہے یہ فریاد نہیں ہے، اب تیرے سوا کوئی سبق یاد نہیں ہے،
ایک پل کے لیے ایک ہی پل لوٹ کے آ جا، ایک پل کے لیے ایک ہی پل لوٹ کے آ جا، سونا ہے میرا تاج محل لوٹ کے آ جا، اے جان غزل جان غزل۔ آئیے حضرات جی، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے بھائی، یہ حاضر کر رہا ہوں، ایک نظم ہے جس کا عنوان پہلا خط۔ یہ بغیر کسی تمہید کے میں حاضر کر دے رہا ہوں۔ ایک نیولی میریڈ کپل، پہلی بار اس کا شوہر پردیس جاتا ہے، وہاں سے وہ خط لکھتا ہے۔ جب وہ خط اس کی بیوی کو ملتا ہے تو وہ کیا محسوس کرتی ہے، حاضر کرنا۔ پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے، پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے، سوچتی ہوں کہ میں سکھیوں کو بتاؤں کیسے، اور چھپانا بھی جو چاہوں تو چھپاؤں کیسے۔ پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے، اس نے لکھا ہے میری جان تمنا تم ہو، آرزوؤں بھری راتوں کا سویرا تم ہو، کیا کہوں کتنا بھیانک یہ سفر لگتا ہے، اب مجھے چاندنی راتوں سے بھی ڈر لگتا ہے، پیار میں کیا میرے پیار میں کیا میرے محبوب یہی ہوتا ہے، جاگتا رہتا ہوں میں سارا جہاں سوتا، پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے۔ جی حاضر کر رہا ہوں۔ اس نے لکھا ہے کہ اس دل میں ہے مورت تیری، ذرے ذرے میں نظر آتی ہے صورت تیری، پھر بھی اے جان وفا اتنا کرم فرما دے، اپنی ایک اچھی سی تصویر مجھے بھجوا دے، میں اسے لکھوں گی میں اسے لکھوں گی تصویر نہ منگواؤ صنم، یا تو بلوا لو مجھے یا تو چلے آؤ صنم، پہلی بار آج میرے پیار نے خط لکھا ہے۔ آخری بند، اس نے لکھا ہے یہ جینا بھی کوئی جینا ہے، رات دن زہر جدائی کا ہمیں پینا ہے، کیا کروں اپنے مقدر میں لکھی دوری تھی، نوکری کرنا میری جان میری مجبوری تھی، میں اسے لکھوں گی میں اسے لکھوں گی، کم کھاؤں گی غم سہ لوں گی، تو اگر پاس ہے ہر حال میں رہ لوں گی، پہلی محبت کا پہلا خط ایک ایسی خوبصورت نظم انہوں نے پیش کی جس میں محبوب اور محبوبہ کے سوالات اور جوابات انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تھوڑا سا بیٹنگ آرڈر کو چینج کر کے ایک شاعرہ کو آپ کے بیچ مائک پر آواز دیں، اور میں جس شاعرہ کو بلانے جا رہا ہوں
जाहिर सी बात है कि जब उनका नाम लूंगा तो फिर आप एक बार चौंकेंगे, क्योंकि निसाई शायरी में महबूब से मिलने बिछड़ने का जिक्र तो होता ही है, घर आंगन के मसाइल भी होते हैं, लेकिन अगर कोई शायरा घर आंगन के मसाइल और महबूब से मिलने बिछड़ने के जिक्र के साथ साथ समाज की नाहमवादियों को भी आईना दिखाए, सियासत की करम फरमाइयों को भी आईना दिखाए, तो वो मोहतरमा शबीना अदीब का कलाम बन जाता है। मैं मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे हुक्म हुआ और मैं हाजिर हो गई। आदरणीय जी बिल्कुल इंशाल्लाह, आदरणीय शिवपाल यादव साहब, मेरे मोहतरम अहमद हसन भाई, इबाद भाई और मोहतरम मंजर भाई, जिनके हुक्म पर इस खूबसूरत महफिल में मेरी हाजिरी, सीधे सीधे चाहती हूँ कि आप मेरी शायरी में शरीक हो और जिस तरह इस छोटी सी शायरा को अपनी शफ़क़तों और दुआओं से नवाजते हैं उसी तरह नवाजें। पेश करती हूँ 4 मिसरे, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है मुलाहिज़ा कीजिएगा। उसके बाद जैसा इंशाल्लाह आप हुक्म देंगे आपके हुक्म की तामील करूँगी, कोशिश करूँगी कि आपके हुक्म की तामील भी कर सकूँ। मुलाहिज़ा कीजिएगा जी, देखिए। कलामे रब, कलामे रब के एक एक लफ्ज़ में गहराई होती है। कलामे रब के एक एक लफ्ज़ में गहराई होती है। वही पढ़ता है जिसके ज़हन में बीनाई होती है। वही पढ़ता है जिसके ज़हन में बीनाई होती है। मेरी बहनों खुले सरियों सरी बाजार मत निकलो। मेरी बहनों खुले सरियों सरी बाजार मत निकलो। तुम्हारे इस अमल से कौम की रुसवाई होती है। आप सब सुनेंगे इस तरह की। मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी बहन को अपनी दुआओं से नवाजा, आपकी मोहब्बतें मिली, आप खुश हुए, शुक्रगुजार हूँ। फिर से पढ़ती हूँ, आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ। कलामे रब के एक एक लफ्ज़ में गहराई होती है। वही पढ़ता है जिसके ज़हन में बीनाई होती है। भैया इसको हटा दीजिए, वो शायद उनको कुछ शिकायत है। मैं भी नहीं चाहती कि भाई बहनों के बीच में कोई दीवार आए। मैं पढ़ती हूँ। कलामे रब के एक एक लफ्ज़ में गहराई होती है। वही पढ़ता है जिसके ज़हन में बीनाई होती है। मेरी बहनों खुले सरियों सरे बाजार मत निकलो। मेरी बहनों खुले सरियों सरे बाजार मत निकलो। तुम्हारे इस अमल से कौम की रुसवाई होती है। तुम्हारे इस अमल से कौम की रुसवाई होती है। दुआएं मिली, बहुत अच्छा लगा। वही माहौल दिया जिस माहौल में आप इस छोटी सी शायरा को सुनते हैं। बारहा कोशिश करती हूँ कुछ और शेर से आपकी खिदमत करके जाऊँ। बहुत ही मेहमानान मोहतरम शख्सियात और बड़े ही मोहतबर समाते हैं। पेश करती हूँ चंद शेर, मुलाहिज़ा कीजिएगा, देख लीजिए, मुलाहिज़ा करें, देखें। नहीं, मैं हाजिर हूँ। कुछ कहना है? नहीं, मुझे इजाज़त दे, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। नहीं, बिल्कुल अहमद हसन भाई की दुआएं मिल रही हैं और आप सबकी दुआएं मोहब्बतें मिल रही हैं। कोशिश करती हूँ, हौसला करती हूँ कुछ पढ़ने का। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता। सुनिए, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता। कभी दुपट्टे
पढ़ती हूँ, मुलाजा कीजिएगा। कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता, बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ। बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ, बिछड़ के दोनों को इस बात का यकीन हुआ कि दूर रहने से भी प्यार कम नहीं होता, कि दूर रहने से भी प्यार कम नहीं होता। एक शेर पढ़ना चाहती हूँ, आप उस तरह से थोड़ा सा खामोश हो गए जैसा आप सुन रहे थे, जिस अंदाज में। बहरहाल महसूस कर रही हूँ कि आप अपनी दुआओं से मुझे नवाज रहे हैं, लेकिन एक शेर में मैं चाहती हूँ कि आप सब शिरकत फरमाएं, अपनी दुआओं से मुझे नवाजें। जहाँ जहाँ तक आप सबकी आवाज़, मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है, दाई से भी दुआएं चाहते हैं और आप सबसे भी देखें। किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें। शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पेश करती हूँ। किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के अश्क पियो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें। शराब पी के कोई मोहतरम नहीं होता। एक शेर अपनी पसंद का पढ़ती हूँ। मेरे मोहतरम राहत भाई अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, क्योंकि वो जो भी कुछ कहें उनके लिए मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे उनकी दुआएं मिलती हैं। ये मेरी खुश नसीबी है, खुशकिस्मती है, आप सबकी दुआएं मिलती हैं। शेर पढ़ती हूँ अपनी पसंद का, दुआ चाहती हूँ। हवा हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते, हवा के एक ही झोंके से बुझ गए होते। अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता, अगर हमारे चरागों में दम नहीं होता, कभी दुपट्टे का कोना भी नम नहीं होता। मैं बार बार आऊँ जाऊँ, एक छोटा सा गीत पढ़ना चाहती हूँ, बहुत ही मोतबर समाते हैं, बहरहाल मुझे दुआएं मिलती हैं। हौसला करती हूँ एक गीत पढ़ने का। आदरणीय शिवपाल यादव साहब, अहमद हसन भाई, बहुत सारी मोहतरम शख्सियतें जी। अरे भाई देखिए फरमाइश है, ये गीत आप बहुत सुनते हैं। नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं आप सबके मैं कोशिश करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। आप सब जो मुझे हुक्म दे रहे हैं, बहुत सारे गीतों के लिए मुझे हुक्म है, मैं कोशिश करती हूँ कि एक गीत आपके हुक्म की तामील करती हूँ और एक गीत मैं चाहती हूँ कि आपके हुक्म की तामील करूँ और वो गीत पढ़ूँ जिसके लिए मुझे आप हुक्म दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत सारे गीत हैं, लेकिन मैं इतने सारे गीत तो नहीं पढ़ सकती, बहुत लोगों की फरमाइशें हैं। मुझे हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि मैं वो गीत जो आप सबके लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ पढ़ूँ, सुने। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। यही जिएंगे यही मरेंगे, ये ऐलान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है ये, हिंदुस्तान हमारा है। बंद पेश करती हूँ। एक एक हिंदुस्तानी की शिरकत चाहती हूँ, दुआएं चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इस गीत में आप सब शरीक हो जाए और मुझे अपनी दुआओं से नवाजें। देखें, चाहे अमन के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं,
के दुश्मन फिर से घर घर आग लगाएं, चाहे शहरों शहरों जाकर फिर वो खून बहाएं। गद्दारों के आगे जाकर हाथ नहीं जोड़ेंगे, सब्र करेंगे, सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। करता है अल्लाह हिफाजत, ये ईमान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जब आप अच्छी तरह से सुनने लगते हैं तो मेरा गला भी अच्छा ही रहता है, मैं उसी तरह से पढ़ती भी रहती हूँ। लेकिन जब थोड़ा सा भी बखीली से काम लेने लगते हैं तो ये आवाज़ भी ख़राब होने लगती है। ऐसा पता नहीं क्यों है, बहरहाल फिर भी हौसला करती हूँ पढ़ने का। बंद पढ़ती हूँ, देखें। जिन लोगों को भी जाना था, जिन लोगों को भी जाना था, चले गए वो कराची। हमको नाज है इस धरती पर, अपनी है ये धरती। जिन लोगों को भी जाना था, चले गए वो कराची। हमको नाज इस धरती पर, अपनी है ये धरती। इस धरती के सब फूलों में लहू बुजुर्गों का है। सहराओं में जज्ब पसीना अपने पुरखों का है। सारे बाग हमारे हैं, हर रेगिस्तान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। और बतौर खास ये बंद पढ़ती हूँ, देखती हूँ कि हमारा मजहब, हमारा ईमान हमसे क्या कहता है। आप सबको शरीक करती हूँ, आप सब इस बल को संभालिए। आप सबके लिए पढ़ती हूँ, आप सबकी तरफ से पढ़ती हूँ। देखें। मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। अपने खून से भारत की तस्वीर सजा देंगे हम। अपने देश की खातिर अपनी जान लुटा देंगे हम। जिसने हमें ये सबक दिया है, वो कुरान हमारा है। शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, मैं आपका हुक्म है, मैं पढ़ती हूँ। जी जी बिल्कुल आपका हुक्म पढ़ती हूँ कि मुल्क से अपने प्यार करो, इस्लाम यही कहता है। अपनी रगों में दौड़ने वाला खून भी पाकीज़ा है। अपने खून से भारत की तस्वीर सजा देंगे हम। अपने देश की खातिर अपनी जान लुटा देंगे हम। जिसने हमें ये सबक दिया है, वो कुरान हमारा है। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। एक बन और पढ़ती हूँ और आप सभी की इस बंद के लिए भी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। देखिएगा कि हमको निकम्मा कहने वालों, जहन को पीछे पलटो। आजादी की जंग की तुम तारीफ उठा कर देखो। शुक्रिया। हमको निकम्मा कहने वालों, जहन को पीछे पलटो। आजादी की जंग की तुम तारीफ उठा कर देखो। अपने पुरखों से पूछो, तहरीक खिलाफत क्या थी। कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी। अंग्रेजों को जिसने डुबाया, वो तूफान हमारा है। शुक्रिया शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ कि मैं बिल्कुल आपका हुक्म है, मैं आपके हुक्म में तामील करती हूँ।
اور یہ बंद आप सबकी खिदमत में दोबारा पढ़ती हूँ, आप सब मुझे हुक्म दे रहे हैं, शुक्रिया। हमको निकम्मा कहने वालों ज़हन को पीछे पलटो, आज़ादी की जंग की तुम तारीख उठा कर देखो, अपने पुरखों से पूछो तहरीक खिलाफत क्या थी, कौन थे शौकत और मोहम्मद अली की हिम्मत क्या थी, अंग्रेजों को जिसने डुबोया वो तूफान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। दुआ के तौर पर एक बंद पढ़ती हूँ आप सबकी खिदमत में, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा कि आँच न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे, अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे, आँच न आए अब मंदिर पे और न मस्जिद टूटे, अब न जले सिंदूर किसी का, अब न कहीं बम फूटे, सारे मुरझाए चेहरों पर रंग खुशी का छाए, प्यार की खुशबू फैले और नफरत को मौत आ जाए, भारत फिर जन्नत बन जाए, ये अरमान हमारा है। शुक्रिया हजरात। हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। एक बंद पढ़ती हूँ, मैं बहुत गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान के बाहर भी मैं गई हूँ। मैं एक बंद तो सुन ले मेरे भाई प्लीज। लेकिन जो बात अपने इस प्यारे से मुल्क में, अपने इस हिंदुस्तान में दूसरे किसी भी मुल्क में नहीं, मैं इस बंद के जरिए आप सब तक पहुँचाती हूँ। अगर मैंने सच कहने की कोशिश की है तो मैं चाहती हूँ कि एक शख्स भी मुझे दुआएं मिले, जितने भी लोग बैठे हैं शिरकत चाहती हूँ। बंद पढ़ती हूँ, देखें कि दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली, दौलत वाले मुल्कों में है दिल चाहत से खाली, खुशहाली के पर्दे के अंदर देखी बदहाली, हमने दुनिया घूम के इतनी बात भी ना जानी, करते हैं माँ बाप की खिदमत आज भी हिंदुस्तानी, सारे जहां से आज भी अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। दोस्तों, शबीना अदीब साहिबा, आपकी फरमाइश पर उन्होंने एक खूबसूरत नज़्म पढ़ी। इससे पहले 2 गज़लें उन्होंने पढ़ी यहाँ और अपना कलाम सुना के रुखसत हुई। शबीना साहिबा ने जो गीत यहाँ पढ़ा है, जाहिर सी बात है कि उसकी जिस तरह से पजीराई होनी चाहिए थी लखनऊ में, उस तरह से आपने उसे मोहब्बतों से नवाजा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने हमारे मुल्क को 28 साल के बाद वर्ल्ड कप का तोहफा दिया, तो पूरे मुल्क ने उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाज दिया, मोहब्बतों का तोहफा दिया। मैं एक बात यहाँ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि भाई मोहम्मद इबाद साहब ने इस मुशायरे का इनेकाद करके, ये मुशायरा इसलिए एक तारीख साज मुशायरा इसलिए कहा जाएगा कि इसमें एक तरफ तो मुल्क भर के वो तमाम मशाइर शोरा इकराम जिनको एक मुशायरे में जमा करना यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है, इसको अंजाम दिया है जनाब मंजर भोपाली साहब की मदद से भाई मोहम्मद इबाद साहब ने। मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधानसभा और विधान परिषद के दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ मौजूद हैं, जनाब शिवपाल सिंह जी यादव, मोहतरम अहमद हसन साहब, और हमारे मुअज़्ज़िज़ीन में ओम प्रकाश सिंह जी महासचिव समाजवादी पार्टी, रजा हैदर साहब एमडी चार्टर मर्केंटाइल बैंक, और शिवपाल सिंह जी के साहबजादे अंकुर यादव, और साथ ही साथ जावेद अंसारी साहब एमएलए जौनपुर यहाँ मौजूद हैं। और ये उर्दू का कमाल है कि उर्दू का ये मुशायरा अभी अपनी मंजिल तक पहुँचा भी नहीं है कि जावेद अंसारी साहब ने ऐलान किया है कि मोहतरम शिवपाल सिंह जी से आज ही वो तारीख मांगेंगे और बहुत जल्द मई के पहले हफ्ते में जौनपुर में एक बहुत बड़ा मुशायरा वो मुनक्किद करेंगे। वहाँ भी जीते इंडिया शान से
یا یہ جیتے صدا ہمارا ملک، اس طرح کے عنوان سے ایک مشاعرہ کا انعقاد جاوید انصاری صاحب ایم ایل اے جونپور کریں گے۔ اچھا یہ لیجئے، عارف عثمانی صاحب ودھائک اور عارف انور ہاشمی صاحب ودھائک، یہ دو ودھائک اور ہیں، یہ بھی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تاریخ اگر شپال سنگھ جی نے سب کو دی تو یقیناً مشاعروں کے حوالے سے ٹیم انڈیا کو مبارکباد دینے کا سلسلہ چل پڑے گا، اور اس طرح سے جو منظر بھوپالی صاحب نے کہا تھا کہ ٹیم انڈیا کے کھلاڑیوں کو بنگلے، تو یقیناً اب جھوپڑیوں تک نوبت شاعروں کی بھی آئی جائے گی، یہ بالکل اب لگنے لگا ہے۔ اب میں ایک بار پھر مبارکباد آپ سب کو پیش کرتا ہوں، بھائی عباد صاحب کو خاص طور سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس وقت یہ جو خوبصورت سنگم آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں جہاں شعراء کو آپ سن رہے ہیں، وہیں ہمارے جو معززین بیٹھے ہیں، ان کے خیالات سے بھی ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ میں اس وقت آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ ہم اپنے بزرگوں کو کس طرح سے اور کس سعادت مندی کے ساتھ سنتے ہیں، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی فہرست کے سب سے بڑے شاعر کو جناب احمد حسن صاحب کے خطاب کے بعد مائک پر آواز دوں گا۔ اب آپ اپنا وعدہ کس طرح سے نبھاتے ہیں اور میں اپنا وعدہ کس طرح سے نبھاتا ہوں، یہ آپ دیکھنے کی بات ہوگی۔ استقبال کیجئے نیتا پرتپکش ودھان پریشد، آج کے صدر عالی وقار جناب احمد حسن صاحب، جو ہمارے اور آپ کے قابل صد احترام بزرگ ہیں۔ میں ان سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خطاب سے نوازیں جناب احمد حسن۔ بھائی شپال سنگھ صاحب، اوم پرکاش جی، حاضرین، سب سے پہلے میں عزیزی عباد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں نے تو لکھنؤ میں اتنا بڑا مجمع کبھی دیکھا ہی نہیں ہے آج تک۔ ایک نوجوان لڑکا نیا، مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں کہیں ہاسپٹل سے ابھی نکل کے آیا بھی تھا، ڈاکٹر کہتا تھا نہ جاؤ، لیکن ان کی ضد تھی، لیکن ضد نے تو آج آنکھیں کھول دی۔ آنکھ کا آپریشن کر کے کھلی آنکھ، آج میں صحیح کہہ رہا ہوں، اتنا بڑا مجمع لکھنؤ کے اندر میں نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن سنا ہے کہ بریانی وغیرہ پہ تو ہو جاتا ہے، ٹنڈے کباب اگر دعوت پہ تو ہو جاتا ہے، لیکن مشاعرے میں میں نے ایسا مجمع کبھی نہیں دیکھا۔ کئی مشاعرہ میں نے اٹینڈ کیا۔ دیکھیں مشاعرے پہچان ہے، اور ہم لوگوں پہ حملے بھی بڑے ہوئے۔ یاد رکھیے کہ ہم لوگوں کی پریشانی، آپ تو تعریف میں اچھل پڑ رہے تھے، یہاں پڑھا گیا کہ مسجد مندر کے جھگڑے یا سیاسی لوگ کراتے ہیں۔ آپ نے وہ تالی بجائی کہ ہم خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ صاحب بس ہم کو نوکری چاہیے، لیکن مسلمان نوکری نہیں چاہتا، نوکری تو خدا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہماری مسجد، ہمیں چاہیے ہمارے مدرسے، یہی ہماری پہچان ہے۔ اور شاعران کرام، آپ نے ہم کو تکلیف دی۔ نوکری کیا ہے ہم جانتے ہیں۔ لکھنؤ کے اندر 33,000 سپاہی بھرتی ہوئے، مایاوتی نے 650 سپاہی بھرتی کیے، 2%۔ کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ ہمارا درد سمجھو، ہم کہاں رہ رہے ہیں لکھنؤ کے بھائیوں؟ کبھی آپ نے ہماری انا ہزارے کی تعریف کر ڈالی۔ انا ہزارے تو فوج میں ایک ڈرائیور تھا، گجرات کا ہے، اس سے زیادہ میں تو 33 سال آئی پی ایس ادھکاری رہا، 12 سال تو ہو گئے ودھان پرشد میں، ملائم سنگھ صاحب نے مجھے بنایا، 18 سال تک رہوں گا۔ میرے اوپر زندگی میں کبھی کوئی داغ نہیں رہا، میں نے زندگی میں کوئی بے ایمانی نہیں کی ہے۔ آج میں سیاست میں آ گیا تو کہا گیا کہ سیاست میں سب بے ایمان۔ ہم سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم حقیقت ہے زندگی کی۔ یاد رکھو شاعروں سے اور آپ مسلمانوں، ہم لوگ اپنی زندگی کے، آپ 2020 کیا ورلڈ کپ جیتا، ہم سے زیادہ آپ سے زیادہ خوشی کون کس کو ہو سکتی ہے؟ لیکن کبھی سنا آپ نے کسی ملک کی ایک ریاست گجرات ہے، نریندر مودی مسلمانوں کا قاتل وہاں پر چیف منسٹر ہے، مناف پٹیل کو کون سا انعام دیا گیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ 1 لاکھ روپیہ جو کل شپال سے گئے تھے اکھلیش جی،
1 लाख रुपया तो जिसके पैर कटे थे उसको दिया है, और मुनाफ पटेल को 1 लाख दिया, यूसुफ पठान को 1 लाख दिया। वही गुजरात है हमारा, हिंदुस्तान हमारा है, यही हिंदुस्तान हमारा है। कहाँ है आपका हिंदुस्तान? कभी आपने सोचा मुसलमानों, कभी आपने सोचा हम कहाँ हैं, कहाँ क्या दर्द हमारा है? कभी आपने सोचा? यह लखनऊ है, यह लखनऊ शहर पहचान है, उर्दू मुशायरे, और यहाँ एक तहजीब है। इस तमाम चीजों में आज लखनऊ की पहचान पत्थर से बनाई जा रही है। यहाँ के इमाम बाड़े की वो पहचान अब नहीं रहेगी लखनऊ की। लखनऊ का कल्चर नहीं रहेगा, लखनऊ के नहीं रहेगा। मैं आपको कहता हूं कि आज इतने साल 63 सालों के बाद, आजादी के बाद, आज लखनऊ के अंदर हम 63 सालों के बाद समाजवादी पार्टी है मुलायम सिंह, हम मस्जिद बचाने वाले हैं, हम मस्जिद गिराने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़ेंगे उनसे। आपका भ्रम है, ऐसे नहीं अमल कायम होता है। जब ये गुंडे बदमाश फिरका परस्त ताकत खत्म होगी तब हिंदुस्तान बनेगा, ऐसे नहीं हिंदुस्तान बनेगा जैसा कि लोग समझते हैं। इसलिए भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, हम लोगों की तो जिंदगी के आखिरी दिन है। हमने कोई घर नहीं बनाया, हमारा घर तो आज भी खपड़ाल है। हम चाहते तो मायावती जैसे बेईमान जो है, जब हम देखते हैं तो हमारा खून खौल जाता। हमने 33 साल तक याद रखना, आपने सोचा, इसीलिए हम लोग पैदा हुए, 33 साल रहे। आज भी मैंने 10 करोड़ रुपए बांटे होंगे, 8 करोड़ मदरसों को दिया। अपनी ईमानदारी के लिए हम जाने जाते हैं। मुसलमानों, आपको अन्ना हजारे दिखाई पड़ा, उसने नरेंद्र मोदी को सर्टिफिकेट दे दिया कि सबसे अच्छा आदमी हिंदुस्तान का है। उसी नारायण अन्ना हजारे का यहाँ कसीदा पढ़ा जाता है। हमारे दर्द को आप समझिए, अन्ना हजारे क्या है? हम लोग भी हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। मुसलमान जो है वो बेईमानी नहीं चाहता, मुसलमान ज्यादा ईमानदार होता है। हमसे कह रहे हैं, लेकिन हमारी पहचान नहीं बन सकती क्योंकि आप खड़े नहीं है। जहां पे आपकी 42% आबादी है लखनऊ के अंदर, वहां पर फरका परस्तों भाजपा के लोग आज तक हमेशा जीतते आए हैं। आज मैं बात को मुबारकबाद दूंगा, इतने आदमी जो इकट्ठा कर दिया है, इस जोश के साथ इकट्ठा कर दिया है, हमारा हौसला और हमारे दिल को बढ़ा दिया। इसलिए मैं आपको एक बार मैं आज बहुत पी आप नहीं जानते, लेकिन हम लोगों की जिंदगी में क्या है? हम लोग तो छोड़ के जाएंगे। जब हमसे कहते हैं लोग हमारा घर अब भी खपड़ेल का है, लोग कहते हैं क्यों नहीं बनाते? हमने कहा अब जिंदगी की शाम में हम आए, अब ऐसा काम कर जाएंगे कि दूसरी दुनिया में सबसे अच्छा मकान हमारा होगा। हम इसलिए सियासत कर रहे हैं। आप सियासी लोगों को यही सुनाते हैं, आप पहचानिए कौन सियासी है। हम मुलायम सिंह के साथ हम बेईमान नहीं हो सकते, हम लड़ेंगे, संघर्ष से लड़ेंगे। हम उनके एसएसपी रहे, तब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, वो जानते हैं कि कौन इंसान अच्छा है कौन खराब है। आप मुलायम को आप पहचान, मुलायम को हम जानेंगे। इसलिए मैं आपसे सही कह रहा हूँ, लखनऊ के बुजुर्गों, लखनऊ के नौजवानों, आज तो इतना बड़ा मजमा देख के हमारा हौसला जो बढ़ा है उसका हम यकीन नहीं कर सकते। आप एहसास करें कि हम चाहते जिंदगी तो बढ़ाता है खुदा, मौत लाता है खुदा, लेकिन उस जिंदगी में आपने रंग भर दिया जिस तरीके से आपने हौसला दिया यहाँ पे। इसलिए मैं आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये बाद एक नौजवान लड़का आज आया, इतने लोगों को इकट्ठा किया, इतने शायरों को इकट्ठा किया। शायरों, आप हमारी पहचान है, आवाज है, रिप्रेजेंट करते हैं। आप बताइए कि गुजरात के अंदर मुसलमान अब भी इज्जत से नहीं रह रहा है। इस लड़की ने, अदीब ने अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे, लड़की ने अच्छा पढ़ा, कई लोगों ने अच्छा किया। आप कर देंगे, सबका इनकलाब कर देंगे। कौन सा इनकलाब करेंगे? गुजरात में आज 2002 से लेकर आज तक 10,000 मुसलमान अपने घरों को नहीं जा सकते और रह रहे हैं, कैंप में रह रहे हैं। उसे नरेंद्र मोदी को हटा लिया आपने। बेगुनाह मुसलमानों के इनकाउंटर हो रहे हैं, बटला हाउस का इंक्वायरी करा लिया, कहां पे इंक्वायरी हो गई? यही है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हम बनाएंगे, जहां वो राज होगा, जब मुसलमान पे भी जुल्म होगा तो इंक्वायरी होगी, उसको इंसाफ मिलेगा। मुलायम सिंह के राज में मुसलमानों की बहुत भर्ती हुई है, 14.5%। 20,000 उर्दू वाले भर्ती किए गए। और आज मैं कहता हूं
कि सरकार आएगी तो जब तक उर्दू पढ़े लिखे हैं कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, फौरन जो हम लोग सब भर्ती कर देंगे। हम गलत वादे नहीं करते हैं। आप पूछिए जो मोहल्ले उर्दू वाले कैसा लाठी खाते हो गए, जब आएगी हमारी सरकार को, इसलिए हम सियासत की बात नहीं करेंगे, हम जिंदगी और हकीकत की बात करेंगे आपसे। मुसलमानों, अब हम समझते हैं कि सही है, अगर हम सही हैं, हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम आपकी हिस्सेदारी दे रहे हैं और देंगे, तो हम आप हमारा साथ दीजिएगा, वरना हम नहीं चाहेंगे कि दे। मैं बिल्कुल खुल के कहता हूँ, यही आप मैं सही कह रहा हूँ। मैं ये सियासत का स्टेज नहीं बनाना चाहता था, लेकिन कई यहाँ जब पढ़े गए उससे मुझे तकलीफ हुई, मैं अपने दर्द को छिपा नहीं सकता था। आप खुश हो सकते हैं कि मंदिर मस्जिद का झगड़ा, मस्जिद मंदिर का तो जब तक परकापरस्त रहेंगे तब तक लड़ेंगे, आज भी हो रहा। बहुत सी मस्जिदें जो है वो किया जा रहा है। मस्जिद रहेगी, मुसलमान रहेगा तो मस्जिद रहेगी, मुसलमान रहेगा तो मदरसे रहेंगे। हमारी जो पहचान मस्जिद मदरसे है, कहाँ ले जाएंगे? नौकरी चाहिए, नौकरी तो खुदा देता है, देगा। जब नौकरियां नहीं थे तो कौन था? क्या हम लोग मर गए थे? मुसलमान तो हमेशा जिंदा रहेगा, रहेगा जब तक क़यामत तक जिंदा रहेगा, करके कोई वो कर दे, हम उनका नहीं मान सकते। इसलिए बात आपके साथ में पहले उठता हूँ, मैं सुनता सभी का, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त हैं, राहत इंदौरी वगैरह भी तो बाकी रह गए, बहुत अच्छी बातें करते हैं, कोई बुरी बातें नहीं, मैं सारांश है, बुरी बात है, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन यह है कि आपको हम कहेंगे कि आप हमारे दर्द को भी अपनी शायरी में ज़रूर समझ दीजिएगा, ताकि आम लोग जो जिंदगी के हकीकतों से जूझ रहे हैं, परेशानियों से लड़ रहे हैं, वो भी समझें कि हमारे लिए कोई खड़ा है। शारान कराम आपसे अपील करेंगे, खुदा से दुआ करेंगे कि जितने लोग यहाँ हैं और आप सब अपनी शायरी तरक्की करें, और जितने लोग उनके ख़ानदान, आने वाली नस्लें ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ सब लोग इज्जत के साथ रह सकें, सबको इंसाफ में, सबको साथ हर तरीके सुरक्षा हो, हिफाजत हो, खुदा करे ऐसा हिंदुस्तान बने। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, आप हम बनते हैं, आपकी तमन्ना भी यही है, हमारी आपकी तमन्ना, लोगों की दुआ और आपका हमारा साथ होना। आज अजीजा में बात बहुत बड़ा काम किया है, मजमा मैं सही करता हूँ, झूठ नहीं बोलता, लखनऊ में कम जाता भी हूँ, आपने देखा ही होगा। आज बहुत ठीक आप लोग के मजमे को बहुत सारी खुश हुई, खुदा करे आप और आपका खानदान और आने वाली नस्लें अमन से रहे, इज्जत के साथ रहें। खुदा हाफिज़। दोस्तों, जनाब अहमद हसन साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि वो ज़ख्म नहीं जिसमें है साथ नहीं, तब बेचारा हमेशा हिम्मत से उठे। आइए अब अहमद हसन साहब के बाद इससे कब कि मैं जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी से गुजारिश हूँ, जैसा मैंने आपसे बात करना था, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि शहंशाह निज़ामत अदबी परिचय इमरान के मुदीर आला और हमारे और आपके लिए काबिल सर-ए-एहतराम जनाब डॉक्टर मिर्ज़ादा मंसूर अहमद साहब से भी गुजारिश की है तो वो बराए कर तशरीफ लाएं और अपने कलाम और अपने खिताब से नवाजें जनाब डॉक्टर मिर्ज़ादा मंसूर अहमद साहब। साथियों, लखनऊ में वाकई बहुत मुशायरे हुए हैं, बड़े बड़े मजमे मैंने देखे हैं, सिर्फ लखनऊ ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मैं बार बार गया हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 60 साल मुशायरों में गुजारे हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ मुशायरे होते हैं और मुझे मदऊन ना किया गया हो। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और बाग साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बड़ा मजमा दुनिया के किसी खित्ते में किसी मुशायरे ने जवाब नहीं दिया। इसमें हमारा जो सियासी मंजरनामा है उसके भी असरात शामिल हैं। क्या हुआ? देखिए हज़रात, मैं नस्र में गुफ्तगू नहीं करना चाहता, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। मैं ये चाहता हूँ कि आज उर्दू के हवाले से ये जो बड़ा मजमा जमा हुआ है, इसके लिए मैं इबाद साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनके साथियों को मुबारकबाद देता हूँ, लखनऊ वालों की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ कि इतना यहाँ पर फैल आए, फिराक आए, फराज आए। कोई शायर ऐसा नहीं था दुनिया का जो लखनऊ में ना आया हो। लेकिन आज जहाँ मजमा मैं देख रहा हूँ, मैंने दुनिया के किसी खिते में मुशायरे में इतना बड़ा मजमा नहीं देखा। इसके लिए मैं इबाद को और उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अहमद हसन साहब ने जो बातें कही, मैं उनको नस्र में तो नहीं लेकिन अपने अशार में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आज जो हालात हैं देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगी लाशें, देखोगे
تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو تائید کیجئے کہ دیکھو گے تو ہر موڑ پہ مل جائیں گی لاشیں، ڈھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا۔ اور ابھی ہمارے ساتھیوں نے، میں ہر سیاسی پارٹی کے لوگ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہماری سماجوادی پارٹی کے لوگ موجود ہیں، ان سے چاہتا ہوں، ان کو یہ بات کہتا ہوں کہ ملی جلی حکومت مت بنائیے گا، بنائیے گا تو آپ بنائیے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں شعر میں سنا رہا ہوں شیو پال یادو جی کو کہ دریا کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی، دریا کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی، کشتی میں تلاطم ہو تو ساحل نہ ملے گا۔ دریا کے تلاطم سے تو بچ سکتی ہے کشتی، کشتی میں تلاطم ہو تو ساحل نہ ملے گا۔ اور مسجد و مندر کے اوپر ابھی گفتگو ہوئی، ایک شعر وہ بھی سن لیجئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیسی مسجد، کیا ہے مندر، جنت اور جہنم کا؟ شعر ملاحظہ فرمائیے، کیسی مسجد، کیا ہے مندر، جنت اور جہنم کا؟ در و حرم مسجد و مندر، ایسی مسجد، کیا ہے مندر، جنت اور جہنم کا؟ در و حرم دونوں کی راہیں دلی پر رک جاتی ہیں، در و حرم دونوں کی راہیں دلی پر رک جاتی ہیں۔ حضرات، مشاعروں کو بنیادی طور پر اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مشاعرہ ہے تو میں ظاہر ہے کہ شاید ایک بات بتاؤں کہ اقبال نے صحیح کہا ہے کہ جب جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اسی طرح سے جب سماج میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، سیاست میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے شاعر اور کوی اسے محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند منفرد شعر پڑھ کر اجازت چاہتا ہوں۔ راحت صاحب کو سننے کے لیے یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، پوری دنیا ان کو سنتی ہے، چند شعر میں پیش کر دے رہا ہوں۔ اور آپ سے ایک ہے کہ رسم تعظیم، یہ ہمارے نزوا کے لڑکے ہیں، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے، کہ رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے، اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے۔ اور کیسے کیسے لوگ حکومت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک شعر سن لیجیے کہ جن کو دستار ملی ہے، ان کو دستار حکومت عزت، کہ جن کو دستار ملی ہے ان کو سر بھی مل جائے تو اچھا ہو جائے، کہ جن کو دستار ملی ہے ان کو سر بھی مل جائے تو اچھا ہو جائے۔ میں لکھنؤ والوں کو، میں خود لکھنؤ میں ہوں، آپ کی نمائندگی کرتا رہتا ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، نیتاؤں کو مبارکباد دیتا ہوں، عباد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی اتنا بڑا مجمع بہت ہی اچھا، اس میں ان کے ساتھ آپ کی محبتیں بھی شامل ہیں اور اردو شاعری کا ذوق بھی شامل ہے۔ شاعر، ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بہت ہی دلچسپ ہے۔ لال قلعے کا پہلا مشاعرہ تھا، پنڈت جواہر لال نہرو اسٹیج پر چڑھ رہے تھے، سیڑھی اونچی تھی، جب وہ چڑھنے لگے تو سیڑھی کچھ لڑکھڑائی، ان کے پیچھے ہندی کے مشہور کوی دنکر جی تھے، تو جب پنڈت جی کے قدم لڑکھڑائے تو دنکر جی نے ان کو سنبھال لیا۔ پنڈت جی نے کہا، دنکر تم نے اچھا کیا مجھے سنبھال لیا، ورنہ میں گر جاتا۔ دنکر نے جواب دیا کہ جب سیاست لڑکھڑانے لگتی ہے تو کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی کوی آ کر کے اسے سنبھال لیتا ہے۔ تو آپ نے شعرا کا نام سنا کہ انہوں نے سچی سچی باتیں کی، شاعر کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک غزل کے چند شعر میں آپ کے سامنے، آپ کی فرمائش پر دو چار شعر۔ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہیں مجھے۔ دیکھیے شاعر کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں، کہنا کچھ اور چاہتا، باہر سے ہم کو خطرہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ جب کبھی کبھی جھگڑا کرتے ہیں اس سے ملک بدنام ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہیں مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہیں۔ نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہیں مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہیں مجھے۔ اور ہم لوگ کیسے ہیں کہ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہے مجھے۔ عجیب درد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، کہیں ہو جلتا مکان اپنا گھر لگے ہیں مجھے۔ اور ہم احمد حسن صاحب، شیو پال یادو جی سے، ان لوگوں کے پاس تمام لوگ اپنا کام لے کر کے آتے ہیں، ان کی جو پوزیشن اس پر ایک شعر سنیے۔ میں ایک جام ہوں، کس کس کے ہوٹ تک پہنچوں، ہر آدمی، ہر کینڈیڈیٹ، ہر الیکشن لڑنے والا انہی کے پاس آئے گا۔
لیکن بعض ایسے ہیں اتنا بڑا مجموعہ جمع کر جائے گا سامنے پہلی بار ملاقات ہو، یہ میرے کو کمال دے گا کہ میں ایک جام ہوں، کس کس کے منہ تک پہنچوں، غضب کی پیاس لیے ہر بشر لگے ہے مجھے، کہ میں ایک جام ہوں، کس کس کے منہ تک پہنچوں، غضب کی پیاس لیے ہر بشر لگے ہیں مجھے۔ اور آخری شعر حضرات کہ تلاش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور شاعر ہوں، تلاش لیتا ہوں اس سے بھی آئینے منظور، کسی کے ہاتھ کا پتھر اگر لگے ہے مجھے، نہ کوئی نہ خوف برق نہ خوف شرر لگے ہے مجھے، خود اپنے باغ کے پھولوں سے ڈر لگے ہیں مجھے۔ عباد صاحب آپ کے ساتھیوں کو اتنا بڑا مظاہرہ میں نے نہیں دیکھا، یہ لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ہمارے اچھے لیڈر ہماری سربراہوں میں آئیں تاکہ ہمارے ملک کا نظام خوبصورتی کے ساتھ چلے اور وہ تصورات آ جائیں جو مجاہدین آزادی نے آزادی کے پہلے دیکھا تھا۔ شکریہ۔ میں محترم شہباز سنگھ کی یاد کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اردو کا مشاعرہ ہے اور اردو زبان کے بارے میں کبھی مشہور ہندو شاعر رام نواس بیدل نے کہا تھا کہ عرب سے جو آئی زبان میں نہیں ہوں، فقط ایک زبان مسلمان نہیں ہوں، کوئی جا کے میرے اردو سے یہ کہہ دے یہ میرا مکان ہے، میں مہمان نہیں ہوں۔ اور دوستوں یہ اردو کا ہی کمال ہے کہ رب صاحب گورکھپوری نے کہا تھا کہ اے اہل ادب آؤ یہ میراث سنبھالو، میں مملکت لوح قلم بانٹ رہا ہوں۔ پھر آپ کی وراثت کو آج کے شاعر نے جب سنبھالا، کبھی راجیش ریڈی بن کر یہ بول اٹھا کہ میرے دل کے کسی گوشے میں ایک معصوم سا بچہ بڑوں کی دیکھ کر دنیا بڑا ہونے سے ڈرتا ہے۔ دوستوں اسی قبیل کے ایک شاعر کو میں اس وقت مائک پر آواز دینے جا رہا ہوں جو اپنے کلام سے بات ثبوت پیش کریں گے کہ اردو صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اردو ہر اس مندر کی زبان ہے جو اپنے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے اور دل میں سچائیوں کے ساتھ اس ملک سے محبت کے ساتھ ساتھ اس ملک کی سچی بات اردو سے محبت کرتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں مظفر نگر سے تشریف لانے والے مہمان شاعر جناب اشوک ساحل سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جی السلام علیکم دوستو، بہت کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، شرکت کی جی 2 منٹ کے لیے۔ دوستو میں نے کبھی زندگی میں ایک شعر کہا تھا کہ صرف لفظوں کی سجاوٹ نہیں کرتا صاحب، اس کے ہر شعر میں پیغام چھپا ہوتا ہے۔ میرے ان 2 مصروں کو ذہن میں رکھیے اور جہاں سے میں اپنے سفر کا آغاز کرتا ہوں شرکت کیجیے۔ عرض کرتا ہوں کہ ایمان دل دماغ سے رشتہ نہیں ہے کیا؟ ایمان دل دماغ شرکت کیجیے۔ نہیں ہے کیا؟ ایمان دل دماغ سے رشتہ نہیں ہے کیا؟ اپنی دعائے خیر کو پرکھا نہیں ہے کیا؟ اپنی دعائے خیر کو پرکھا نہیں ہے کیا؟ گھبرا کے گردشوں سے قضا مانگتا ہے کیوں؟ اللہ کے کرم پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ایمان دل دماغ سے رشتہ نہیں ہے کیا؟ اپنی دعائے خیر کو پرکھا نہیں ہے کیا؟ گھبرا کے گردشوں سے قضا مانگتا ہے کیوں؟ اللہ کے کرم پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ آئیے یہاں سے 4 مصرے پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے، ملاحظہ کریں۔ عرض کرتا ہوں کہ فلک کے قہر ستاروں کی بد دعا سے ڈرو، فلک کے قہر ستاروں کی بد دعا سے ڈرو، زمین کے صبر و تحمل کی انتہا سے ڈرو، زمین کے صبر و تحمل کی انتہا سے ڈرو، یہ حادثے یہی پیغام دے رہے ہیں تمہیں، اگر عذاب سے بچنا ہے تو خدا سے ڈرو۔ اگر عذاب سے بچنا ہے تو خدا سے ڈرو۔ دوستو یہ مشاعرہ جیتے صدا انڈیا کے عنوان سے منسلک ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی جانب سے ٹیم انڈیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن آپ تمام حضرات کی ہی جانب سے
पूरी टीम इंडिया की खिदमत में 4 मिसरे पेश करता हूं, शिरकत कीजिए। अर्ज करता हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल। आइए चंद शेर आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत चाहता हूं, शिरकत कीजिए। अब कहता हूं कि शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता, शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता, किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं, समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं, किसी पर्वत न मैं पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं, समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं। दोस्तों, जाने क्यों बीच में मुझे 4 मिसरे याद आ गए। मेरा जी चाहता है कि अपने नौजवान साथियों की भी थोड़ी सी खिदमत करता जाऊं। तो मैं ये क्या कि समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील की आंखों की गहराई से डरता हूं। मेरे नौजवान साथियों, शिरकत करना मेरे 4 मिसरों। अब कहता हूं, क्या कुछ कहा नहीं, शिरकत करना दोस्तों। क्या है सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम। अब नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या है सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। है सितारों, तुम्हें कलियों के तबस्सुम की कसम, ओस की बूंद पे सूरज की गवाही लेना, खो गई है मेरे महबूब के चेहरे की चमक, चांद निकले तो जरा उसकी तलाशी लेना। मिसरे मुलाहिजा फरमाए कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ। अब बता लीजिएगा मिसरों कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी जवानी गवा रहा था मैं, तेरी निगाह ने एक काम दे दिया, वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा रहा था। तेरी निगाह ने जी मैं जी मैं तो दोस्तों, अगर मैं अच्छे शेर सुना रहा हूं तो जरा एक बार मेरी हौसला अफजाई कीजिए, और आपको बताने की जरूरत है कि हौसला अफजाई कैसे की जाती है। तो आइए, अभी मैंने अर्ज किया कि किसी से कोई ताल्लुक न दोस्ती न लगाओ, फिजूल अपनी जवानी गवा रहा था मैं, तेरी निगाह ने एक काम दे दिया, वरना बहुत दिनों से कबूतर उड़ा रहा था मैं। दोस्तों, एक बात बताता चलूं मैं आपको कि अगर सियासत को कोसने और हुकूमत को गाली देने का नाम शायरी है, तो माफ कीजिए, इस फकीर की झोली में आपके लिए कुछ नहीं। लेकिन अगर आप जिंदगी की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी को देखने, परखने और बरतने का हौसला रखते हैं, तो आइए शिरकत कीजिए। मैं चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश करके याद चाहता हूं। तो मैंने अभी अर्ज किया था कि शजर के कद में शाखों की लंबाई से डरता हूं, किसी पर्वत में पर्वत की ऊंचाई से डरता हूं, समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन
तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। और मुलायजा कीजिए एक शायर का एहसास, मोहतरम अहमद हसन साहब, कि समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। दोस्तों शेर सुनिए, शेर सुनिए कि समुंदर नापना भी चुटकियों का काम है, लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, शेर सुनिए कि मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूँ। मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूँ। और लखनऊ वालों, ये छोटा सा हकीर सा एक शायर आपकी खिदमत में एक तोहफा पेश करने की इजाजत चाहता है। मैंने ये व्यक्त किया कि मेरी बस्ती की बेटी मायके में जब से बैठी है, न जाने क्यों मैं सपनों में भी शहनाई से डरता हूँ। अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। शेर सुनना दोस्तों कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। मैं दादा बन चुका हूं पर बड़े भाई से डरता हूं। ये शेर जो है वो शिवपाल सिंह जी की नज़्म किया जा सकता है। वाकई सही बात है। शुक्रिया, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और गजल का आखिरी शेर आपकी खिदमत में पेश करके आपसे इजाजत देता हूँ। मैंने भी अर्ज किया कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। यादव साहब कि अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। मैं दादा बन चुका हूँ पर बड़े भाई से डरता हूँ। मैं इज्जत से जीऊँ दुनिया में जितने दिन जीऊँ यार। मैं इज्जत से जीऊँ जितने दिन जीऊँ यार। मैं इज्जत से जीऊँ दुनिया में जितने दिन जीऊँ यारब। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, रुसवाई से डरता हूँ। मैं इज्जत से जीऊँ, मैं इज्जत से जीऊँ दुनिया में जितने दिन जीऊँ यारब। मैं मरने से नहीं डरता, रुसवाई से। शुक्रिया। वाकई साहब अभी इस कौम ने तहजीब का दामन नहीं छोड़ा। ये बिल्कुल सही है। सदर मोहतरम और आप सभी से इजाजत चाहते हुए चार मिसरों के माध्यम से आपसे जुड़ना चाहती हूँ। 4 मिसरे आपके नजर करती हूँ। हिंदी मंचों से पहली बार आपके बीच यहाँ तक आई हूँ। उर्दू की मोहब्बत, आपकी मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई है। 4 मिसरे। शऊर व फिक्र की ऊंची उड़ान रखते हैं। शऊर व फिक्र की ऊंची उड़ान रखते हैं। शऊर व फिक्र की ऊंची उड़ान रखते हैं। नई जमीन नया आसमान रखते हैं। और घरों में उनके जहालत पनप नहीं सकती। घरों में उनके जहालत पनप नहीं सकती। लबों पे अपने जो उर्दू जबान रखते हैं, लबों पे अपने उर्दू जबान रखते हैं। और 4 मिसरे और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आप सुना रहे हैं। गजल के कब लोग देखिए इनके पल्लू जो है वो रुक नहीं रहा है। अगर आप इजाजत दें तो टोपी लगवा दीजिए। मुझे मालूम है लखनऊ वाले ये मोहम्मद इबाद साहब का मुशायरा है, तारीखी मुशायरा है। यकीनन इसलिए भी है कि इसमें जितने काम होंगे सब तारीखी होंगे। चलिए आपकी मोहब्बत, आपका जो भी कहना है कबूल करती हूँ। और
गजल के कवि 4 मिसरे और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, पढ़ना चाहती हूँ। वो मेरे पास आए और मैं उससे दूर हो जाऊं, वो मेरे पास आए और मैं उससे दूर हो जाऊं, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि कुछ मगरूर हो जाऊं, ये मेरे दिल की ख्वाहिश है कि कुछ मगरूर हो जाऊं। वो एक लड़का जो कहता है कि मेरी जान है तुझ में, वो एक लड़का जो कहता है कि मेरी जान है तुझ में, भला मैं किस तरह उसकी नजर से दूर हो जाऊं, भला मैं किस तरह उसकी नजर से दूर हो जाऊं। और शेर सुनिएगा, बतौर खास पढ़ती हूँ। आप सभी की दुआएं चाहूंगी, मोहब्बतों के लिए यहाँ तक आई हूँ। आप दोस्तों सुनते जाइए, शेर भी सुनते जाइए साथ साथ। ये जो हमारे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आपके लिए पहली बार बहुत दूर से यहाँ तक आई हूँ, सुनिएगा। भला मैं किस तरह उसकी नजर से दूर हो जाऊं, खुदा के वास्ते अब तंज के ये ज़लज़ले रोको, खुदा के वास्ते अब तंज के ये ज़लज़ले रोको, खुदा के वास्ते अब तंज के ये ज़लज़ले रोको, कहीं ऐसा न हो एक रोज मैं लातूर हो जाऊं, कहीं ऐसा न हो एक रोज मैं लातूर हो जाऊं। मेरे अल्लाह इल्म फन की मुझको रोशनी दे दे, मेरे अल्लाह इल्म फन की मुझको रोशनी दे दे, मेरे अल्लाह इल्म फन की मुझको रोशनी दे दे। ज़माने भर मैं उर्दू की तरह मशहूर हो जाऊं, ज़माने भर मैं उर्दू की तरह मशहूर हो जाऊं। और एक मतला और 2 शेर और पढ़ूं, बिल्कुल एक बार फिर हाजिर करती हूँ। मेरे अल्लाह इल्म फन की मुझको रोशनी दे दे, मेरे अल्लाह इल्म फन की मुझको रोशनी दे दे। ज़माने भर मैं उर्दू की तरह मशहूर हो जाऊं। और एक मतला और 2 शेर और आपके नाम करना चाहती हूँ, सुनेगा समाप्त कि तेरे गीत सुनना चाहते हैं, गीत हाजिर करूंगी, बिल्कुल हाजिर करती हूँ, गीत हाजिर करती हूँ। गीत से पहले एक मतला 2 शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहती हूँ, हवा का रुख बदलना चाहती हूँ। और तसव्वुर भी जहाँ डरता है जाते, तसव्वुर भी जहाँ डरता है जाते, मैं उन शोलों पे चलना चाहती हूँ, तसव्वुर भी जहाँ डरता है जाते, मैं उन शोलों पे चलना चाहती हूँ। और जहाँ वालों मेरे हमराह चलना, जहाँ वालों मेरे हमराह चलना, मैं दुनिया को बदलना चाहती हूँ, जहाँ वालों मेरे हमराह चलना, मैं दुनिया को बदलना चाहती हूँ। और शेर देखिएगा कि रिवाजों अब मुझे आज़ाद कर दो, रिवाजों अब मुझे आज़ाद कर दो, मैं इस जद से निकलना चाहती हूँ, रिवाजों अब मुझे आज़ाद कर दो, मैं इस जद से निकलना चाहती हूँ। और शेर देखिएगा कि ये है बचपन की तस्वीरों का जादू, ये है बचपन की तस्वीरों का जादू, ये है बचपन की तस्वीरों का जादू, मैं बच्चों सी मचलना चाहती हूँ, मैं बच्चों सी मचलना
चाहती हूँ और गीत का आदेश है, गीत के 2 बंद आपके नाम करती हूँ। दुआएं चाहूंगी मोहब्बत अयूब भाई के नाम करती हूँ। ये भी देखिए, अब 2 बंद अपने नाम करा के ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे विधानसभा के दोनों सदन इनके नाम हो गए। बिल्कुल अयूब भाई के नाम पढ़ती हूँ, सुनिएगा। ऐसा है, मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि 2 बंद गीत के आदेश है, गीत के बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अयूब भाई गीत सुनिएगा, गीत के बंद पढ़ती हूँ। बहुत अच्छा है। ये भाई देखिए, ऐसा है, गीत का आदेश है, गीत पढ़ूंगी और आपको मैं बता दूं कि खबर तुझको नहीं शायद, खबर तुझको नहीं शायद मैं कितना प्यार करती हूँ। खबर तुझको नहीं शायद मैं कितना प्यार करती हूँ। ये पलकें बंद करके मैं तेरा दीदार करती हूँ। तेरी तस्वीर तन्हाई में अपने सामने रखकर, मेरी तस्वीर तन्हाई में अपने सामने रख, तेरी तस्वीर तन्हाई में अपने सामने रखकर अकेले ही मैं अपने प्यार का इजहार करती हूँ। अपने प्यार का इजहार करती हूँ। गीत का बंद करिएगा। यूं ही तन्हाई में जब रात गुजर जाती है, यूं ही तन्हाई में जब रात गुजर जाती है, यूं ही तन्हाई में जब रात गुजर जाती है, मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है। मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है। दीप की लौ से पतंगे जो लिपट जाते हैं, दीप की लौ से पतंगे जो लिपट जाते हैं, प्यार में गुजरे वो दिन रात पलट आते हैं। चूम के भंवर जो कलियों को बहक जाते हैं, मेरी पलकों में हंसी ख्वाब महक आते हैं। आंखों आंखों में यूं ही चांदनी कट जाती है, आंखों आंखों में यूं ही चांदनी कट जाती है, आंखों आंखों में यूं ही चांदनी कट जाती है। मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है, मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है। और मत देखिएगा, फिर से आकर उन्हीं बाहों का सहारा दे दो, फिर से आकर उन्हीं बाहों का सहारा दे दो, मेरी कश्ती को मोहब्बत का किनारा दे दो। तुमने वादा जो किया था वो निभाने आओ, तुमने वादा जो किया था वो निभाने आओ, तुमने वादा जो किया था वो निभाने आओ, जिंदगी को मेरी दुल्हन से सजाने आओ, मेरी दुल्हन से सजाने आओ। जिंदगानी को समेटूं तो बिखर जाती है, जिंदगानी को समेटूं तो बिखर जाती है, जिंदगानी को समेटूं तो बिखर जाती है। मुझको उस वक्त तेरी याद बहुत आती है। दोस्तों, नम्रता श्रीवास्तव जी अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई। क्या मामला है? बहरहाल मैं ये जानता हूँ कि इतनी सीधी सीधी बातचीत हुई है कि अब नम्रता जी भी अयूब भाई का पता और नंबर लिए बगैर नहीं जाएगी और अयूब भाई भी उनका नंबर और पता लिए बगैर नहीं रह पाएंगे। अब ये इतना खूबसूरत और खतरनाक गीत नम्रता जी पढ़ रही थी, नौजवान तो कुछ हो ही रहे थे। उन्होंने ये कहा कि बुजुर्गों से माफी चाहती हूँ। मामला बुजुर्गों और नौजवानों का नहीं है, इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए,
नौजवानों में बड़ा जोश होता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बेचारों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है। और बुजुर्गों को सब पता होता है कि करना क्या है, लेकिन उनकी मजबूरी ये होती है कि वो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अब आप पूरी तरह से तरोताजा हो गए हैं। यही चाहता था, मैंने नम्रता जी को इसीलिए माइक पर बुलाया था, मेरी कोशिश कामयाब हुई। मैं चाहता ये हूँ कि अब अपना वादा वफा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे कम एक बार फिर आपका इम्तिहान, एक मेहमान को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूँ। मोहतरम ओम प्रकाश सिंह जी, महासचिव समाजवादी पार्टी को मैं माइक पर आवाज दे रहा हूँ और उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप देखिए, सिर्फ 2 मिनट आप उनकी बात सुन लें और उसके बाद मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी से गुजारिश करूंगा। हाँ बिल्कुल, इनके बाद फौरन इनके बाद यार। साथियों, जनाब अहमद हसन साहब, हमारे नेता विरोधी दल अपने इरादों के मजबूत आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, हमारे तमाम विधायकगण, भाई अब्बास साहब, पत्रकार दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, जिन कानों तक मेरी आवाज़ और गूंज पहुंची सभी साथीगण, मैं भाई अब्बास, भाई शकील हैदर साहब को बधाई देते हुए, जब शुरुआत हुई दोस्तों, एक बात हमारे वाली साहब ने कहा कि हमें भी घर, खिलाड़ियों को भी घर मिले, साथ ही साथ जो शायर और शायरा हैं उनको भी मिले। हमारे शानदार नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा, आपको तो मिले ही मिले, जो सुनने वाले लोग हैं इनको भी कहीं ना कहीं को मकान मिले। मैं इतना जरूर अपने शायर साथियों से कहना चाहता हूँ, आप वो शानदार लोग हैं जो समाज को बहुत ठीक से पहचानने और जानने का काम करते हैं। एक बात जरूर कहूँगा कि हम उस जमात और कतार के लोग हैं, हम घर बसाना जानते हैं, घर उजाड़ने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए मैं जरूर कहूँगा कि घर उजाड़ने वाला कौन है, और सचमुच इतनी बड़ी जो शानदार फौज है जो बार बार कहती है कि अल्लाह उसे कभी नहीं माफ करता, तो दूसरे का दिल दुखाने का काम करता है। तो आने वाला कल और आने वाले दिन में जिस बात को हमारे तमाम साथियों ने बताने और कहने का काम किया था, जिस बात को आज पहली बार मैंने देखा, नेता विरोधी दल विधान परिषद अहमद हसन साहब ने जिस जज्बात में बहुत शानदार तरीके से उस बात को रखने का काम किया, जिंदगी में वो शख्स हमेशा कामयाब होगा जब इन जिंदगी में 2 चीज याद रखे, और वो 2 चीज वो है अपने दोस्त और दुश्मन का। जिंदगी में वो शख्स हमेशा कामयाब होगा जो दोस्त को पहचान ले और दुश्मन को पहचान ले। यदि दुश्मन पहचान लेगा तो जिंदगी में मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। अल्लाह पर भरोसा करने वाले लोगों, मैं इतना ही कहूँगा कि अपने दुश्मन को पहचानो, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त है। जिस दिन यह पहचान लोगे, ईमानन कह रहा हूँ, फिर कभी दुश्मन हमारा पंजा नहीं मरोड़ सकता है। इन्हीं बातों के साथ बहुत भाई अब्बास साहब को बहुत बहुत शुक्रिया, और सचमुच तमीज़ तहजीब का मरकज लखनऊ के शानदार शख्सियत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, इस बात का गुजारिश करते हुए भाई अब्बास साहब से धन्यवाद देते हुए, शुक्रिया करते हुए कि मित्र याद रखना, आने वाला कल और आने वाले दिन में यदि आपका फैसला शानदार रहा तो आने वाला दिन और आने वाला कल भी बहुत शानदार रहेगा। खुदा हाफिज़, जय हिंद। दोस्तों, ओम प्रकाश सिंह जी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने वो तमाम बातें जो महसूस की इतनी देर तक बैठकर, वो आपकी अदालत में यहाँ पेश की। मैं इससे कबल के अपना वादा पूरा करूँ, एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मोहतरम शिवपाल सिंह जी बैठे हैं, मोहतरम अहमद हसन साहब बैठे हैं, ओम प्रकाश जी हैं, समाजवादी पार्टी के सभी सीनियर लीडरान यहाँ मौजूद हैं। भाई इबाद साहब को, मोहम्मद इबाद साहब को मुबारकबाद के साथ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि कहा यह जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, समाज का आईना होता है। अदब को समाज का आईना कहा गया है।
ادب جو دیکھتا ہے وہی اپنے اندر اس کا عکس پیدا کرتا ہے. اور عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مشاعرے میں نیتا آتے تو ہیں, ربن کاٹتے ہیں, شمع جلاتے ہیں, چند منٹ بیٹھتے ہیں, بھاشن دیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں نے گھنٹوں یہاں بیٹھ کر شورا اکرام کا کلام سنا ہے. میں آپ کو مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ سچائی یہ ہے کہ ادب ساہتیہ کا اور ادب اور ساہتیہ سماج کا آئینہ ہوتا ہے, اور آئینے کے سامنے بہت دیر تک وہی ٹک سکتا ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو. اس لیے میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور آپ لوگوں نے جس حوصلے کے ساتھ یہاں شورا اکرام کا کلام اور ان کا حوصلہ افزائی جس طرح سے کی ہے, اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. دوستو آئیے صرف چند جملے بولوں گا. اردو ادب کا ایک چلتا پھرتا اسکول, اردو غزل کی آبرو, ہمارے مشاعرے کا وقار, اور اردو مشاعروں میں سکہ رائج البرق جناب ڈاکٹر راحت اندوری. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس تاریخ ساز مشاعرے میں جسے محمد عباد صاحب نے بہت محبتوں سے سجایا ہے, ٹیم انڈیا کی جیت کے مبارک موقع پر یہ منعقد کیا گیا ہے, اس میں اپنے کلام سے وعلیکم السلام علیکم. میں بہت پیچھے بیٹھا تھا تو یہ منظر نہیں دیکھ رہا تھا. واقعی بہت عباد, کہاں عباد, بہت ہی اتنی خوبصورت محفل تم نے سجا دی. مبارکباد دیتا ہوں. ارے واہ واہ, بہت کم محفلیں ایسی ملتی ہیں جو جیسی اتنی خوبصورت محفل سجا. ایک خاتون مجھ سے پہلے پڑھ رہی تھی, بیچ میں ہمارے محترم لیڈر رہنما ہمارے آ گئے, لیکن وہ ماحول کچھ اور ہی تھا جب وہ پڑھ رہی تھی. انہیں مردوں سے خاصی شکایتیں تھیں ان کے کلام میں, انہوں نے بڑی شکایتیں کی انہوں نے. آپ سب کی طرف سے ایک مطلب میں انہی کی نظر کرتا ہے. ایک زیادہ نہیں, 10-5 منٹ. یہ منظر میرا چھوٹا بھائی ہے, اتنی محفل خوبصورت جس نے سجا لی ماشاءاللہ. یہ منظر اور عباد اور آپ سب کی طرف سے جاگنے کی بھی, ابھی میں زور سے پڑھوں گا, جاگنے کی بھی جگانے کی بھی عادت ہو جائے. جاگنے کی بھی عادت ہو جائے, جگانے کی بھی عادت ہو جائے. کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے. جاگنے کی بھی, جگانے کی بھی, جاگنے کی بھی, جگانے کی بھی عادت ہو جائے. کاش, آپ آمین کہو یارو. جاگنے کی بھی, جگانے کی بھی عادت ہو جائے. کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے. دور لقمان نہ دے خدا کے لیے, بس مجھے پڑھنے دو میری جان, مجھے پڑھنے دو یار پلیز, مجھے پڑھنے دو. جاگنے کی بھی, جگانے کی بھی عادت ہو جائے. کاش تجھ کو کسی شاعر سے محبت ہو جائے. دور ہم کتنے دنوں سے ہیں, کبھی غور کیا؟ دور ہم کتنے دنوں سے ہیں. معاف کیجیے, میں تھوڑی دیر مشاعرہ پڑھوں, ایک آدھ 2 شعر پھر آپ کے لیے پڑھوں گا. دور ہم کتنے دنوں سے ہیں, دور ہم کتنے دنوں سے ہیں, کبھی غور کیا؟ پھر نہ کہنا جو امانت میں خیانت ہو جائے. دور ہم کتنے دنوں سے ہیں, کبھی غور کیا؟ پھر نہ کہنا جو امانت میں خیانت ہو جائے. مجھے اس بات کا احساس ہے, امیر صاحب میرے سامنے یہاں بیٹھے میں صدر ہیں, اور مجھے معلوم ہے کہ میں لکھنؤ میں شعر پڑھ رہا ہوں.
लखनऊ में मैं कोई 40 बरस से शेर पढ़ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि लखनऊ में क्या पढ़ना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ जरूरी होता है, एक पार्ट ऑफ द गेम, ये खेल का चक्कर चलता है। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए, अब मैं सुना के बताऊंगा और आप सुन के बताएंगे। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए, फिर न कहना जो अमान उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। उखड़े पड़ते हैं लखनऊ में शेर पढ़ रहा हूं, लखनऊ वालों को शेर सुना रहा हूं। फिर न कहना जो अमानत में खयानत हो जाए, उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम किसी दिन जो चली आओ मरम्मत हो जाए। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र, उखड़े पड़ते हैं, बस भाई अब दुआएं, मैं दुआएं डाल सकता हूं। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर। तुम किसी दिन जो मुझे मालूम है कि जब मैं शेर पढ़ूंगा तो लखनऊ शेर सुनेगा, और जब मैं मुशायरा पढ़ूंगा तो लखनऊ मुशायरा सुनेगा, मुझे मालूम। उखड़े पड़ते हैं मेरी कब्र के पत्थर हर दिन। तुम किसी दिन जो चली आओ मरम्मत हो जाए। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे। शिवाजी आपकी तरफ से ये इस महफिल को दे रहा हूं, ये बात तुम्हारी तरफ से ये शेर दे रहा हूं, मैं आपकी तरफ से शेर पढ़ रहा हूं लखनऊ में। तुम किसी दिन जो चली आओ मरम्मत हो जाए। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, जुगनुओं तुमको नए चांद उगाने होंगे, इससे पहले कि अंधेरों की हुकूमत हो जाए। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा कर। एक चिंगारी, मलिक ज़ादा साहब ने मुझे दाद दी, ये सनद है मेरे लिए। एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में, उसे वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। अच्छा ये बताओ, लखनऊ के बहुत, अरे भाई ये जो आगे खड़े होकर बैठे जल्दी से बैठिए। नहीं आगे जो बड़े होते हैं थोड़ा एडजस्ट करिए। देखिए अब ये बताओ, मेरा पसंदीदा शहर है ये। मैं 1/3 वर्ल्ड में, 1/3 दुनिया में गया हूँ। मेरा पसंदीदा शहर जो है वो लखनऊ है। अभी नहीं तू बोलेगा फिर कहते यार, फिर मैं क्या बोलूंगा। मैं ये कर रहा हूँ
کہ یہ بہت اچھے لکھنؤ کے بہت اچھے لوگوں بہت سچائی سے بتانا کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اور اچھا لگے گا جب میں شعر پڑھنا شروع کروں گا. بس مجھے لگ جائے کہ ہاں میری گرفت میں ہیں آپ، میرا شعر سننا آپ نے شروع کر دیا تو میں شعر پڑھنا شروع کروں. منظر نے مجھے ٹوکا تھا کہ پیسے تو مل ہی گئے تمہیں، تو جلدی سے جاؤ مائی کو جاؤ اپنے گھر والے. یہ بات اتنا ایماندار آدمی ہے. ایک مہینے پہلے اس نے مجھے فون کیا تھا منظر کے حوالے سے کہ راحت بھائی آپ کو آنا ہے. میں نے کہا میں آؤں گا. اس نے کہا کہ آپ کا اکاؤنٹ نمبر دیجیے. دوسرے دن اس نے میرے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیے. اتنا ایماندار آدمی. اس ایماندار آدمی کو آپ کو کیش کرنا چاہیے. یہ فوراً اکاؤنٹ نمبر لیتا ہے. سنیں چلو وہ چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ، چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے. ڈاکٹر صاحب سنیے گا، یہ سہارا جو نہیں ہو، یہ سہارا جو نہیں ہو، پلیز 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 راحت اندوری جب شعر پڑھے تو راحت اندوری کا شعر سنا جائے. یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں. مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں. یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں، مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں. اور یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں. یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے، یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے، یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. یہ مطلب اچھا تھا. آپ نے کوشش کیا کر لی معلوم؟ آپ نے کو سمجھنے کی کوشش کر لی. آپ سے گزارش ہے کہ شعر سمجھنے کی کوشش مت کیجیے. آپ اپنے شاعر پر یقین رکھیں کہ شعر اچھا ہوگا. تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں، میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں، میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں، میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں، خدا بنانے میں. ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ، ابھی انہیں نہ پریشان کرو مسیحاؤ. میرے ابھی انہیں نہ میرے ایک دوست ہیں آپ کے اور پورے دیش کے، پوری دنیا، اردو دنیا کے اردو دنیا کے محبوب ترین شاعر ہے. میرا دوست ہے، میری جان ہے، منور رانا. تو وہ ایک شعر پڑھتا ہے تو اس میں ایک لفظ آتا ہے چاراگر. تو وہ چاراگر کے معنی بتاتا ہے کہ بھئی دیکھیں چاراگر کے معنی ہوتے ہیں مسیحا. تو میں نے اس سے کہا کہ یار منور چاراگر تو آسان لفظ ہے، مسیحا اور مشکل